Our next resource person has joined us. Um, he is Dr. Sri Bhagwat. Now, I would just take the privilege to introduce him to you all. Dr. Sri Bhagwat is a proactive professor who believes in hard work and efficient working. He is the head of the Department of Business Management, Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalaya Sagar. He has around 22 years of experience in teaching and dealing with many responsibilities of the university. Dr. Bhagwat believes in supporting his faculty members in their endeavors to achieve professional excellence. He is a PhD in finance and a specialized in finance and marketing in his post-graduation MBA course. More than being a guide to his scholars, Dr. Bhagwat believes in mentoring their knowledge and guides them to be a complete academician to serve his fraternity. He has around 22 books published in various journals. On this note, I would request Dr. Bhagwat to kindly address the session. Sir, we can't hear you. Sir, your voice is not coming. Hello. Yes, sir, now we can hear you. Okay. It is okay. Good morning to all of you. Good morning, sir. Now I can start, madam. Yes, sir, please do so. Okay. Okay. Thank you, madam. Okay. Today my topic is preparation of budgets and costing reports related to events. So, my dear participants, I would like to tell something before this event related costing. Actually, we have uh, three topics in this topic. First is budget, second is costing, and third is event. So, I would like to introduce before you budget firstly. So I think those participants who are belonging to finance background or accounts backgrounds, so they have some knowledge about budgets. But those who are belonging marketing and HR and other areas, so I think they have little knowledge about this budget. So dear friends, first of all, I would like to tell what is budget. So take the budget is a important tools of planning and controlling of cost for the management. You can say budget is a quantitative expression of a plan of action prepared in advance for a period. Uh, Here, uh, whenever you are going to start a work or any event, so before this, you are required to prepare your money matters, activities related to money. So you can roughly you can say this is a this will be your budget. So as per our traditional system, traditional approach, uh, we have a master budget. Master budget means this is a combination of your functional budgets or summary of your functional budgets. So you can classify this budget in various category. If you will go according to functions, so first will be your master budget. Master budget means this is summary of your all budgets, and then subsidiary budget are functional budget. Subsidiary budgets means this is a partly budget, means this is a budget of a specific activity or a specific department. Like you can prepare sales budget, you can prepare production budget, you can prepare cash budget. These are the functional areas, and budget relating to these functional areas are known as functional or subsidiary budget. Okay, you can see here uh, functional budget or subsidiaries budget. After this, you can again classify this as per time.
So this may be long-term budget, short-term budget, or current budget. So I think you are aware with these words, long-term, short-term, and current budget. And in last, flexible and fixed and flexible budget. Suppose you have prepared a budget and you are unable to change this during your activities or during your time period. So you can consider this is a fixed budget. And the second situation is here. Suppose you are thinking this some changes should be here or then there, and you are going to change this. So in this case, you can change that figure, a amount of that particular heads. So this will be flexible budget. Sometime you can change whole items or whole amounts. You can convert this by percent, or you can convert reduce the amount. You can increase the amount. Means you can you are able to change your pre-planned amounts or figures. So you can consider, or you can say that this is a flexible budget. Means there is a flexibility to change. And after this, there is a concept of a separate concept is here: zero-based budgeting. Zero-based budgeting, if you are not taking reference support of your old budgets, so you can say, and you are starting from zero, so you can say this is a zero-based budgeting. Means you are starting from zero. So, dear participants, this is a traditional approach of budgeting. Means any organizations, any sole businessman can prepare their budget related to these types and categories. But in case of event management or event related budget, this is not apply the same concept and terms. So we will discuss later. Before this, we are also required to discuss the costing. Costing means this is a process of ascertainment of cost of a particular event or items. So here in budgeting process, and especially in our case, means event management, we are very close to this costing system, because of if your costing methods and techniques are very good, you are applying very efficiently, so you can reduce your cost and you can increase your profits. So for this region, costing is a very important in event management, or ascertaining the cost of events. Okay, and after this, we will go to events. Events means here it is not required from my side that I tell you the definition and explanation of events. You know more than you have more knowledge in compare of me, because of since starting you are taking various knowledge on that topic. So it is not necessary to explain here. But my dear friend, I would like to explain one thing more here. Suppose you are talking about budget and accounting. So in my opinion, if you are talking budget, so here you are interested, yeah, you are going to plan your financial plan only. But if you are talking about accounts, so these have double sides, where budget have only single side,
and accounts have a double side. Double side and single side means in budget you will show and you will assume, you will try to maintain or manage your expenses only. Means you are planning for your expenses only. But in case of accounts, here you will see, you will summarize your expenses, and you will also summarize, and you are also interested to find out the profit or incomes. So in case of our events, you can consider this. This is activities or account of sole business or accounts of sole proprietors. So here you can see the hidden form of income and expenses statements. में आपने देखा होगा कि जैसे जो फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाते हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स नहीं बनाते, तो दे प्रिपेयर व्हाट expenses are there and what incomes are there. So our events related activities or costing system is just same to income and expenses statements. आप उसको कंपेयर कर सकते हैं. एज इट इज तो बिल्कुल सेम टू सेम तो मैच नहीं करता है, लेकिन क्योंकि उसमें से इनकम्स गायब है, लेकिन एक्सपेंसेस वैसे ही. तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा इवेंट्स का जो बजट है वो एकदम आपके जो एक्टिविटीज है एक सिंगल प्रोप्राइटर का है, और उसने क्या उसके कंटेंट्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है. बट इवेंट्स आर नॉट सर्टेन. There are various version or types of events which requires or which needs various additional heads and activities. I would like to give some just 1 minute. This is a list of items in events. So here you can see it is location, rentals, food and beverage, audiovisual entertainment, lighting, decorations, trash removals, security, insurance, collateral materials, miscellaneous printing and specialties. So if you are going, suppose you are taking an example of an event like a wedding event, okay? So all heads of wedding events will be not matched with your other events. And suppose you are going to compare this wedding events with your tour event or any conference. So conference belongs various steps or activities where marriage wedding plans contains other type of headings and activities. So actually we can say these are the disturbing or influencing elements for our account system, our budgeting system. Means you cannot compare one schedule or one sample of budget related to our event with other event, because of there is a long number of events and they belong and they contains their own heads, and the other type of events contains
their other and separate activities. So these activities are the major reason or major factors which separate or categorize the nature of budget, event budget. बेसिक बजट की बात करोगे जो ट्रेडिशनल में बताया, तो वहाँ स्पेसिफिक कंटेंट्स हैं, उस सबकी उसमें मैचिंग हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत से आइटम्स आपके ऐड होते जाएंगे, कुछ उसमें से कट होते जाएंगे और वो मैच नहीं करता है. सपोज यू आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ फूड, and suppose you are going to organize or going to organize a event, and your party or customer is not believing in food, so your all this is a very big activity of event. So you will remove this food item from your event. और लेकिन कभी आप एग्जाम्पल में देखोगे तो आपको मिलेगा कि मैक्सिमम जहाँ फूड जो है लेकर के फूड आइटम्स को लेकर के चलते हैं, तो उनका मैक्सिमम पोर्शन आपने कई इसमें देखा होगा एग्जाम्पल से, प्रीवियस एक्सपर्ट्स जो है कोई बोले होंगे कि इसमें मैक्सिमम पोर्शन जो है या सबसे बड़ा पोर्शन जो है उनको फूड एंड बेवरेज पर एक्सपेंस करते हैं. तो अब फॉर एग्जांपल अपन ने लिया कि फूड रिमूव कर दिया है, तो ऐसे अनसेपरेबल पार्ट है, लेकिन कोई पार्टी बोलती है नहीं ठीक है हमको फूड का रखना ही नहीं है, उसकी जगह पर कुछ यदि अल्टरनेटिव रखना चाहती है तो आप उसका फिर फूड का जो एक कॉन्सेप्ट है कि इसमें मैक्सिमम पोर्शन जाना चाहिए तो वो नहीं जाएगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ एक बड़ा चेंज महसूस करोगे. So like this, and suppose this is a insurance, and some parties are agreed for insurance and some are not agreed for insurance. So you can say in such a way they are disturbing elements. Yeah, you can say they are elements which are responsible for changes in our budget heads. Okay. After this, I would like to tell one thing. If you are interested to calculate or find out the actual cost and costing of your activities, so after as a planner, event planner, you should take a questionnaire. You should prepare a questionnaire, you can say event budget sheet, you can say. So you should prepare this and you should fill this with your customer. Means you have to ask questions, means whatever items are there, so you have to create some options, like if you are talking about location, so you have to ask so many questions about your location. So your customer will give some information as per their interest, जो भी उसका सोच समझ होगा या जो फाइनेंशियल कंडीशन होगी उसके हिसाब से कुछ आपको रिप्लाई करे. इसी तरीके से फिर उसका रेंटल के बारे में कि आपको रेंटल पर क्या क्या लेना है, क्या क्या अवेलेबल है या क्या क्या चीजें हैं, उसके बारे में आप पूछिए. देन फूड के बारे में ऐसे आप पूछिए. तो जितने आइटम्स है, ये जो आइटम्स आप देख रहे हैं, लोकेशन, रेंटल, फूड, ऑडियो, वीडियो, सभी चीजों के बारे में आप उससे ऑप्शन पूछिए. ऑप्शन पूछने के बाद आपको उसका कॉस्टिंग करने में, क्योंकि एक तरीके का ही आपका थोड़ा कस्टमाइज वे ले लेता है, तो कस्टमाइज वे के कारण से जब आप उसको कर देते हो तो पर्टिकुलर कस्टमर के हिसाब से ये जो है आपका कॉस्टिंग में आपको हेल्प मिलेगी और एग्जैक्ट कॉस्टिंग के नियरेस्ट आप पहुंचेंगे.
तो जो आपके डिफरेंसेस आते हैं लास्ट में जो कैलकुलेट करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस या देखते हो या ओवरऑल कॉस्ट देखते हो, तो वहां पर इसका अपन को हेल्प मिलता है। बिफोर दिस आई वुड लाइक टू टेल वन थिंग, दिस इज द बिलोंगिंग टू टर्म्स रिलेटेड टू आवर इवेंट एंड बजट्स। आपने देखा होगा प्रोजेक्टेड कॉस्ट है और यू कैन से एस्टिमेटेड कॉस्ट है और एक्चुअल कॉस्ट है। तो बजट में कभी भी, मैं लास्ट में अभी आपको कुछ बजट के सिंपल्स पीपीटी में दिखाऊंगा। तो इसमें आप ये देखिए, देयर विल बी 3 कॉलम्स। वन विल बी ऑफ पर्टिकुलर्स, second will be of cost or expenses, and this will be divided into parts. First will be estimated or projected expenses, and second will be your actual expenses. If you are going to calculate your profit actual cost, so here this projected or estimated and actual cost will give that figure. Means expected or projected means जो आप अपना एक्सपीरियंस किया है आपने, या जो उसके बारे में पर्टिकुलर आपने सुन रखा है। सपोज आप फूड की बात करो, तो फूड जैसे आपने एक एज्यूम कर लिया कि 500 रुपीज का पर प्लेट पड़ेगा। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड रेट हुआ, 500 रुपीज पर प्लेट, इट इज द स्टैंडर्ड रेट। ओके, या आपने सोच के रखा कि दिस आइटम्स विल बी प्रोवाइडेड इन वन प्लेट एंड दिस विल बी 500 रुपीज विल बी कॉस्ट ऑफ पर प्लेट। तो ये आपका प्रोजेक्टेड फिगर भी हो सकता है या आपका स्टैंडर्ड फिगर भी हो सकता है। और इस फिगर को फिर एक्चुअल से जब आप प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म कर चुके होगे, तो जो फिगर आपको मिलेगा उससे आप कंपेयर करो। तो किसी भी बजट में ये आइटम वाइज यू हैव टू राइट मेंशन दिस योर आइटम्स which is appearing on screen. So and there will be sub items also. तो इसको आप लिखो, वो करोगे, नोट करोगे और एक्चुअल को कंपेयर करो, फिर आप जो फिगर निकल करके आएगा। इफ यू आर इन्वेस्टिंग मोर projected arrested, that means you are investing more than your expected figures. If you are reducing this, means you are investing the less than your projected or estimated cost, expenses or cost. Means if you are reducing this, means you will be in profit. If you are increasing this, that means you are in loss. So this will be format of your event budget, and this is not certain. This is not certain in each and every conditions, because of this depends upon the event planners कि यही वर्ड यूज करेंगे या यही फॉर्मेट यूज करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि ये आपके एक्सपीरियंस और आपके उसके जो ट्रेंड है आप में उसमें, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप बजट प्रिपेयर करो। लेकिन हाँ, कॉलम ऐसे ही रहेंगे, वन विल बी ऑफ पर्टिकुलर एंड वन विल बी ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड वन विल बी ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। एंड जो बड़े प्लानर्स रहते हैं, तो बड़े प्लानर्स मीन्स जिनके पास कुछ आइटम्स जो हैं परमानेंटली वो परचेस करके रखे हुए हैं, और जब भी उनका इवेंट करने का चांस मिलता है या उनको टास्क मिलता है या कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो उस समय वो परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे समय में या कुछ ऐसे बजट्स होते हैं जिसमें कुछ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट की चीजें भी आती हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी है ना, इस पार्ट भी नहीं माना है, कुछ इमेजिन के लिए जरूरी है, इसलिए मैंने बता दिया। तो वो कुछ प्लानर्स के पास वो फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट के कारण से क्या जो आइटम्स होते हैं, तो उसकी कॉस्ट के कारण से क्या है,
आपका जो बजट में जो इफेक्ट पड़ता है या जो कॉस्ट उसका रिड्यूस कर पाते हैं, क्योंकि हायर कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको कंपेयर में ज्यादा आपको चार्जेस लग रहे हैं और खुद अपना परमानेंट आप परचेज करके ही रखे हो और उसी को यूज कर रहे हो, तो आप एक तो उसका एक स्टैंडर्ड जो अमाउंट होगा या रेंट होगा वही चार्ज करो, क्योंकि दूसरा जो आपको देगा तो उसपे एक्सपेंसेस के साथ साथ में आपका प्रॉफिट ऐड करके देगा, और आपका खुद का यदि वो मटेरियल है तो आप क्या करोगे, उसका कम से कम प्रॉफिट जो है या एक्सपेंसेस जो है इन दोनों में से या तो अपने हिसाब से एक बहुत बैलेंस अमाउंट डिडक्ट करोगे, तो वो जो दोनों का अंतर होगा रेंटल और आपके खुद का, तो वहां पर आप कॉस्ट जो है उसका आप रिड्यूस कर सकते हो। तो ये कुछ टर्म्स है, जब भी आप कॉस्ट की बात करेंगे तो डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, इस टर्मिनोलॉजी से पढ़ सकते हैं, या फिक्स्ड कॉस्ट या फिर वेरिएबल कॉस्ट, इसके हिसाब से बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। तो यहाँ इवेंट मैनेजमेंट में जो इवेंट रिलेटेड अकाउंट्स और बजट्स हैं, सो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, we are not only responsible to prepare a budget, we are also responsible to reduce the cost of that events. आप स्टैंडर्ड बजटिंग की बात करोगे तो केवल बजट बनाना, आप तो केवल एक्सपेंसेस शो करोगे, लेकिन इवेंट में जहां पढ़ते हैं तो केवल शो नहीं करना है आपको, वहां कॉस्टिंग जहां पर ऐड है, तो कॉस्टिंग ऐड होने के कारण से you are also responsible to reduce your cost. So how you can reduce your cost? These are very important and you have to work on that. तो सारे तरीके या सारे चीजें जो है उसके ऊपर आपको करना है, then you have to prepare your budget as per according to format or simple whatever it is. तो सिंपल में भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, जैसे मैंने आपको बताया वही सिंपल है आपका पर्टिकुलर projected cost and actual cost. Okay. After this, some sorry. These are the determinants. These are the determinants. We have already mentioned this, but you can see there. Actually, these are the types of events. So आप लोगों ने अभी तक बहुत पढ़ लिया होगा इसमें, जैसे फैमिली इवेंट्स, कम्युनिटी इवेंट्स, प्रोफेशनल बिजनेस इवेंट्स, public events, campaigning and public meetings, fair and exhibitions, and next classification is it is personal and informal, formal. इसमें पूरे में आप देखेंगे तो सब में जो है आपके बजट के जो कंटेंट्स हैं या जो उसके हेड्स हैं वो आपके मैच सेम टू सेम मैच करें ऐसा जरूरी नहीं, कुछ आइटम्स इसमें से हटते जाएंगे, कुछ जुड़ते जाएंगे, वो उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा बजट है। जैसे कॉन्फ्रेंस में आपने जो यूज किया है तो जरूरी नहीं है कि आपके फैमिली बजट में यूज हो, या जरूरी नहीं है कि वो आपके दूसरे जो स्पोर्ट्स इवेंट कोई है तो उससे जरूरत हो तो और मैच कर जाए। वो कोई कारपोरेट इवेंट्स हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपका वो फैमिली से वो कर जाए। ये नाम से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि कितना तो नेचर में कितना अंतर है, और इस अंतर के कारण से जो है आपका हेड्स जो है उसके चेंज हो जाएंगे। तो हेड्स जो है आपका बजट का एक कोई स्पेसिफिक नहीं है इवेंट के केस, लेकिन जो भी आपके सामने है उसको आप किस तरीके से हैंडल करते हैं या आप किस तरीके से उसमें उसका सब डिवीजन करते हैं उस हेड्स का,
या कैसे टास्क डिस्ट्रीब्यूट करते हो आप? जैसे अभी मैंने बोला कि कुछ बड़े प्लानर्स होते हैं, तो बड़े प्लानर्स के पास एक फैसिलिटी लेके चलते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो है अपने अलग अलग एक्सपर्ट्स को दिए रहते हैं, उनके वर्कर्स ही रहते हैं एक्चुअली, उनको दिए रहते हैं। जैसे मान लो एडवर्टाइजिंग वाला पोर्शन है, तो एक बंदा है वो एडवर्टाइजिंग देख रहा है, तो वो उसका ही एक्सपर्ट है, उसके पास बहुत से आइडिया हैं या बहुत से अल्टरनेटिव्स हैं, और उस अल्टरनेटिव का यूज करके वो जो मिनिमम जो है उसके लिए वो प्रोवाइड करता है। या उसमें जो है जो दूसरे लोग हैं या जो अल्टरनेटिव दे सकते हैं उनसे वो बात करेगा या जो कुछ भी करेगा वो कॉस्ट जो है मिनिमाइज करे, तो उनके पास ये भी फैसिलिटी होती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो सारी चीजें हैं ये किस तरीके से डिस्टर्ब करती हैं, या किस तरीके से जो स्ट्रक्चर है आपका इवेंट बजट का उसको इफेक्ट करती है। ये एक्टिविटीज हैं कुछ, हैं ये भी आप पढ़ चुके हैं। इसमें एक्टिविटीज में कि जो बजट इवेंट है, तो कॉस्ट कंट्रोल एंड बजट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको कितने जगह पर हमारा अकाउंट आता है। अकाउंट मीन्स आपको इसको बजट कंसिडर करने के लिए आपने मैं सजेस्ट करना चाहूंगा। तो आप प्री इवेंट जो एक्टिविटीज हैं और ड्यूरिंग इवेंट एक्टिविटीज जो है, तो प्री में आप देखेंगे लास्ट में है अकाउंट पर्सन्स एंड एन अकाउंटेंट लिखा हुआ है। So whenever you are going to start a event, so that time this is the starting time, so that time you have to consult with your account person, means who are expert in account, or who are who have knowledge of finance. In our finance there is a project manager. So project manager will be responsible for financial matters, but in general way you can consider this as a account persons. मतलब जो नाम है, हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि प्रोजेक्ट फाइनेंशियल प्लान बनाएगा, लेकिन जहां ज्यादा ये इस टर्मिनोलॉजी से लोग फेमिलियर नहीं है, उसको आप ये कर सकते हो कि अकाउंट पर्सन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। देन जो इसके बाद जो आपका जो पोस्ट यो इवेंट एक्टिविटीज होती है, इसमें भी आप फिर आप देख रहे हैं फाइनल अकाउंट सेटलिंग। तो आप देख रहे हैं कि एक्टिविटीज में दो बार जो है ये आपका अकाउंट से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड या बजट से रिलेटेड बातें आ रही। जो जितनी भी एक्टिविटीज आप लेके चल रहे हैं कि एक इवेंट में इतनी इतनी एक्टिविटीज की पॉसिबिलिटीज है, तो इस पॉसिबिलिटीज में जो है आपका दो बार अकाउंट आ रहा है, या आप उसको दो बार सोचते हैं, जबकि दूसरे जो आपके ये एक्टिविटीज हैं या मैटर्स हैं वो आपके इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, या इतने आपको इफेक्ट नहीं करते हैं आपके इवेंट को कि उनको बार बार लेकर के चला जाए। क्योंकि कोई भी जो वी आर एक्चुअली वर्किंग फॉर प्रॉफिट, so for this profit reason this steps of this activity of our event is very very important, क्योंकि वहीं पर लूज हो जाएंगे या वहीं पर आप एक्सपेंसेस आपके ज्यादा हो जाएंगे या कॉस्ट रिड्यूस नहीं कर पाओगे, तो कोई काम क्यों करेगा। तो आप ये देख रहे होंगे कि अकाउंट का या मनी मैटर का पोजीशन जो है वहां पर आपके इवेंट में क्या क्या रखता है। इसके बाद आप देखेंगे, देखिए स्ट्रेटजी फॉर कॉस्ट मिनिमाइजेशन, जिसमें इवेंट की जितनी एक्टिविटीज हैं तो उसमें कॉस्ट मिनिमाइजेशन के लिए क्या क्या एक्टिविटीज आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट, कलेक्ट एंड कंपेयर इवेंट्स एंड वेन्यू इंफॉर्मेशन। जो आप अल्टरनेटिव की बात करते हो
कि हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, ये अल्टरनेटिव्स हैं. So first of all, you have to collect the basic information around you, your surroundings. तो जो भी आपके ऑप्शंस निकल करके आते हैं, so you have to compare these options and as per the interest of your customer, you have to select a you have to compare your alternatives. Okay, so which will be suitable and cheapest alternative? So you have to select this. You have to select as this as per your customer's interest. And after this, collect and compare cost of decorations. यहाँ आप देखेंगे सारी चीजें जितनी भी जो आप ये आइटम्स हैं, एक्टिविटी, वो सारे में मतलब अल्टरनेटिव्स आपको लेकर के चलना है, और उसके बारे में आपको रिसर्च कह लीजिए या रेफरेंस कह लीजिए, वो सारी चीजों को पहले आपको कंसीडर करना है, और देन आपको डिसाइड करना है या डिसीजन लेना है. तो कलेक्ट एंड कंपेयर कॉस्ट ऑफ डेकोरेशंस. इफ यू आर गोइंग फॉर डेकोरेशंस इन योर इवेंट्स, so search and identify the options related to decorations. If you are opting alternative A, so you have to compare this alternative with alternative B. If you are feeling that alternative A is better than in compare of B cost wise, so you have to select this cheapest alternative. And after this, collect fiscal impact data. Fiscal impact data means here you can see whenever we go in hotels or restaurants. So when we take some breakfast or lunch, dinner in hotels or restaurants, and whenever we see the bills, so that time we see the various unnecessary expenses on that bill. जैसे आपने देखा होगा कई लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, सर्विस चार्ज है, ये टैक्स है, वो टैक्स है, तो आपने ऐसी सारी चीजें देख रखा हो. तो ये सब चीजें जो देखा है, तो इसको प्रॉफिटेबल कैसे आप बना सकते हैं, तो इसके बारे में जो आपका जो सोचोगे आप, या जैसा अपन तो आप तो देकर के, जैसे यहाँ थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा इस मेरे को एक्सप्लेनेशन को, कि हमारे देने के बाद फिर हम चक्कर में पड़ते हैं कि पक्का बिल है कि कच्चा बिल है, ये टैक्स गवर्नमेंट को सबमिट करेगा नहीं करेगा, ये हमारे पीछे की बात है ना. लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, इवेंट के केस में इसका छुपाना या इसमें गेम प्ले करना, इट इज वेरी इजी. तो जैसे आप टिकट का ऑप्शन लेते हो, है ना, या कोई दूसरा बिलिंग का ऑप्शन लेते हो, तो उसमें जो गेम प्ले आप कर सकते हो, या जो चीजें आप वहाँ कुछ पेमेंट का पार्ट जो है, यहाँ आप इसके बहाने क्रिएट करोगे या लोगे, तो वो सारी चीजें जो हैं इसमें आती हैं कलेक्ट फिस्कल इम्पैक्ट डेटा. तो उसको आपको अपने इवेंट का नेचर देख करके, या अपने टिकट या जो कुछ भी आप इशू कर रहे हो, या जो भी ऑप्शन रखे हो, उसमें आपकी इस तरीके के क्या ऑप्शंस हैं, तो ये सब चीजें उसमें आपको हेल्प करती हैं, या वहां पर कॉस्ट आप इंक्रीज कर सकते हो, या सॉरी कॉस्ट मतलब प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हो. ठीक है.
ट्रैफिक मिटिगेशन प्लानिंग, इसमें जस्ट आप ये कह सकते हैं कि जैसे सिमिलर टाइम में जो आपने आपको सेम नेचर का जो आपका इवेंट चलता है, या उसी टाइम में आपका जो इवेंट्स आसपास में जो हो रहे हैं, तो उसको साथ में लेकर के यदि ट्रैफिक को कंपेयर करते हैं और उसमें अपने कितना सेव कर सकते हैं, या कितना आपके लिए वो फायदेमंद हो सकता है, वो सब चीजें जो हैं यहाँ पर आपका प्लस में जा सकता है। जैसे बैरियर्स की बात करो, कैन बी collected and held near the event site, तो ये सब इस तरीके की चीजें जो भी आपके दो इवेंट होने के कारण से, आसपास के इवेंट होने के कारण से प्रॉफिटेबल हो सकती हैं, तो वो सब चीजें आपको लेकर के चल रही है। देन इनिशिएट ए पायलट प्रोग्राम, तो आपको पायलट प्रोग्राम के बारे में तो अपन अवेयर ही हैं, तो ये साथ में उसको लेकर के आपको चलना है कि जैसा भी कि आपने सिचुएशन फील किया कि ऐसा सिचुएशन आएगा, तो आप उसके लिए पहले प्री प्लान रहोगे और उस तरीके से उसको प्रॉफिटेबल आप बनाओ। तो ये जो स्ट्रेटजी है आपकी, तो ये स्ट्रेटजी इस तरीके से डेवलप करते हुए चलना है कि हर चीज का आपको उसको प्रॉफिट में आपको कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट, जैसे डेवलप रिटेल लाइक इन्वायरमेंट, कुछ भी जैसे आपका जो इवेंट है, तो उसमें आपको ये ऑप्शन मतलब ऐसा क्रिएट करना है कि जहां पॉसिबल है, हर केसेस में हर इवेंट में तो मैच कर जाए ऐसा जरूरी नहीं है, तो आपको रिटेल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, तो उससे कुछ आपको एडिशनल बेनिफिट आपके होते चले जाएंगे। देन डायरेक्ट नेगोशिएशन विथ इवेंट और वेन्यू ऑपरेटर्स, जैसे आप उसमें खुद जाइए बात करने, है ना, जैसे मेजर वेन्यूज हैं, तो उसमें आप खुद जाइए उनसे बात करने। उस पर अक्सर आपने देखा होगा, यहाँ ऐसा समझ सकते हैं, इफ यू आर सेंडिंग टू थर्ड पर्सन एंड दोज पर्सन whose impact is not enough good, so in such case you should take this responsibility and you should talk to the person, and you can like that you can minimize the rent or cost of that venue. And next is institute special event parking fee or taxes, जैसे आपने वो फिजिकल वाले में देखा है, वो ये भी इसी तरीके का है, जो भी रूल्स रेगुलेशन लेजिस्लेटिव पार्ट है, तो ये हो गया। देन ये टिकट टैक्स हो गया, तो ये सब जो है आप जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, या जो लेजिस्लेशन है या रूल्स रेगुलेशन है, तो उससे रिलेटेड आप जो है कितना इसको बेनिफिशियल बना सकते हैं आप अपने लिए, और जो आपका एडिशनल बेनिफिट हो सकता है, इसको उसको आपको कन्वर्ट करना है। देन डेवलप ए लाइन आइटम, it is also legislative part of your event। आपने देखा होगा कुछ क्लॉज डाल करके आप रखते हो, कोई एग्रीमेंट साइन किया या किसी से कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो जो अल्टरनेटिव आप लेकर के चलते हो कि
यदि पेमेंट नहीं हो पाता है और ऐसा हो जाता है, आग लग जाती है, पानी गिर जाता है ना, सो इन सच सिचुएशन हाउ यू विल रिकवर योर कॉस्ट। तो इसके लिए जो बैकग्राउंड आप बनाते हो या इसके लिए जो क्लॉज डेवलप करते हो या कंडीशंस आप रखते हो कस्टमर के साथ में, है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी आपको जो आप उस कॉस्ट को आप रिकवर कर सकते हो। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है कि ठीक है, तो ये पानी गिरना था, गिर गया, और कुछ ऐसा सडन कुछ एक्सीडेंटल केस है, हो गया, इंश्योरेंस नहीं है, इट इज नॉट इंश्योरेंस, it is agreement between you and your customer, means agreement between planner, event planner and a customer. So okay, and next is apply for grants. We know that there are so many agencies and association or bodies who provide grants related to your that particular event. अब चाहे वो आप करो, चाहे वो आपकी पार्टी करे, हैं, लेकिन यदि आपके पास ऐसा ग्रांट का ऑप्शन है आपका उस पर्टिकुलर इवेंट में, सो यू शुड ट्राई फॉर दैट ग्रांट। और ये एक तरीके की आप कह सकते हैं सब्सिडी है या एक हेल्प है? अब उसके वर्जन एंड टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग हो सकते हैं, so you have to take this if it is there, so you should take this, you should enjoy this opportunity and sponsorship. So whenever you are going to organize any event, so for advertisement purposes, so many organizations are interested to promote their brand or their self. So they will approach you, and if you are interested and they are not coming and you know this, so you should approach with them. आप खुद कर सकते हैं, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहिए। यदि ऐसा आप में है, सपोज आप यू आर ऑर्गेनाइजिंग अ सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस, दिस इज अ एजुकेशनल इवेंट, ओके, सो you can see there will be academic persons from so many places, different places. So if any banks is working near you, so you can approach your bank, so you can give their you can take sponsorship from that bank, and you can give some pamphlets and banners and other things of bank to your academic persons or audience, जो भी वो प्रोवाइड कर दें, अब जैसे भी उनका ऐड हो सकता है आप उसको कर देंगे और बहुत लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। इसी तरीके से आप कहीं कोई म्यूजिक कंसर्ट है और वहां पर आप जा रहे हो, ऑर्गेनाइज करने जा रहे हो, वहां पर आप देखोगे तो कुछ ऐसे म्यूजिक कंपनी है वो इंटरेस्टेड रहेगी कि आप इसमें मेरा हम ये चीजें स्पॉन्सर कर देते हैं, हमारा ये जो भी टर्म्स एंड कंडीशन बताएंगे, तो आप उसको एंजॉय कीजिए और इस तरीके से आपका जो कॉस्ट है जो मिनिमाइज है। अच्छा, ये सारी चीजें जो है जो आप ये स्ट्रेटजी बनाओगे, तो इस स्ट्रेटजी में ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार जो है ये सारी चीजें आपके बेनिफिट में जाएंगी। कुछ कस्टमर्स जो होते हैं बहुत बदमाश होते हैं। बदमाश इन द सेंस मीन्स दे नो इफ यू आर taking this sponsorship, so they will discuss you about this matter कि आप तो इतना स्पॉन्सरशिप करवाए हो, वो इतना दे दिया, हमारे कारण से वो आया है, इतना इनकम आपको हो गया, तो उनका कॉस्ट है, उनका जो फी है, मतलब जो भी आप चार्ज कर रहे हो उनसे, उसको आप मिनिमाइज करो। ये इस तरीके का भी
situation आता है upon you how you will handle this, and this will be depend upon your terms and condition and your behavior and your business style. So but you can enjoy this opportunity. तो ये आप देख सकते हैं एज ए इवेंट प्लानर। तो जितनी भी चीजें हैं, कई में एक ब्रांड वाली बात भी आती है, इसमें स्पॉन्सरशिप वाली है, तो यहाँ एक कहीं पर आप ब्रांड के उस हेडिंग में भी पढ़ेंगे इसको। तो वो सेम चीज है कि आप वो कोई ब्रांड के लिए काम करता है या स्पॉन्सरशिप करता है, उसका आप एक कंसिडर कर सकते हैं कि उसकी इमेज के लिए या उसके प्रमोशन के लिए काम कर रहा है, आपसे स्पॉन्सर कर रहा है, तो वो आप उस चीज को सेम मानिए उसको। Now, how you can be master, how to master your event budget? So here बहुत सारी चीजें आपने डिस्कस कर लिए, देख लिया है, और ये सब सारी चीजें ये फैंसी आइटम्स है एक्चुअली, क्योंकि बजट में आप इतना ही चीजें लेकर के चलिए कि ट्रेडिशनली आप कैसे बनाएंगे, मीन्स व्हाट इज द फॉर्म एंड फॉर्मेट ऑफ बजट, एंड हाउ यू विल प्रिपेयर योर इवेंट बजट। This is a very small topics are small material of budget and cost. But when you think your how you will minimize your cost, so that time this will be a big matter for a big material for you, because of if you are going to minimize your cost, so there will be so many way or so many alternatives before you, which help you that how you will minimize your cost. Okay. Now, how to master your event budget? So first is reference historical event budget data. Means you have to refer the old budgets, means what are the items and amounts of particular heads in that budget, so you can refer them or those items. So like that you will get big experience. जैसा हमने बताया ना आपको कि कुछ स्टैंडर्ड वो है स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट के बाद आता है आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स है, वो सबके लिए ये है कि सभी लोग उसी को लेके चलते हैं कि ये स्टैंडर्ड इतना है। जैसे बोल रहे हैं 500 रुपीज का एक पर प्लेट है, तो वो सबको यही बोले मानेंगे कि 500 रुपीज रफली मान रहे। एस्टिमेटेड ये वरी कर सकता है स्टैंडर्ड से। तो इसी तरीके से जब आप उसको रिफर करोगे, तो रिफर करोगे तो आप हिस्ट्री में जाओगे। तो सपोज आपने दिस इज द 2020 and suppose you have worked on any events, and that time your cost of one plate was 490 rupees. So on the basis of 490 you can take new decision, you can decide new price of per plate. Okay, so this is the benefit of reference historical event budget data. जो उसका पास्ट रिकॉर्ड है उसके बेस पर आप जो है प्रेजेंट या करंट बेस बजट को आप एज्यूम कर सकते हैं और उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं या उसको नया रेट दे सकते हैं। एंड देन कंसिडर रिसेंट ट्रेंड्स इन इवेंट बजटिंग। अभी जो जैसे अपन ने हिस्टोरिकल तो देख लिया, लेकिन अब देखना है कि अभी करंट टाइम में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। तो जैसे किसी चीज को या अल्टरनेटिव्स को आपको सेलेक्ट करना है, तो आपको ये ट्रेंड्स जो हैं ये ट्रेंड्स उसके लिए हेल्पफुल होते हैं। ये आपके इमेज के ऊपर वर्क करता है कि के लिए वर्क करता है कि यदि आप ट्रेंड से बाहर या आउटडेटेड या
ट्रेंड से हट करके आप एक काम करते हो तो आप एक्सेप्ट भी हो सकते हो, रिजेक्ट भी हो सकते हो। तो ये उसके लिए काम करता है आपके नए इमेज के लिए कि कॉस्ट इसमें बाद में जुड़ेगा, पहले आपके इमेज को इफेक्ट करेगा। तो ट्रेंड को आपको फॉलो करना है, रिसेंट ट्रेंड। And set your goals for your events, you know this. Get buy-in from all departments and stakeholders. जो भी रिलेटेड लोग हैं आपके, जो भी डिपार्टमेंट्स है, जैसे बोला ना कई बड़े प्लानर्स हैं, तो वो डिपार्टमेंट वाइज या वो स्पेशलाइजेशन वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं काम को, और उसके हिसाब से आपको उसको मैनेज करके चलना है। और जैसे वो जो भी जैसा आपका कोऑर्डिनेशन होगा, और कोऑर्डिनेशन का फायदा आपको मिलेगा कि आपको अपडेट रहेंगे उससे। मान लीजिए आप कि नॉलेज जो आपको मिलेगा अपने सबऑर्डिनेट से या डिपार्टमेंट से, तो उसमें कुछ भी प्लस माइनस आपको करना है या कुछ और अल्टरनेटिव सजेस्ट करना है या उनसे पूछना है। तो ये सारी चीजें मतलब वेरियस एडवांटेजेस हैं आपकी कोऑर्डिनेशन में। मैप आउट ऑल योर एक्सपेंसेस सो यू कैन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। इसको थोड़ा सा ऐसा समझ सकते हो कि जैसे आपने कुछ एक्सपेंसेस जो भी आपके हैं, तो उनमें से आपको कुछ ज्यादा उसके ऊपर थोड़ा आपको काम करना है, और उसका फाइंड आउट करने की कोशिश करना है आपको कि आपका जो एक्सपीरियंस वाला डिसीजन या आपका स्टेप्स लगे। जब पास्ट चीजों को या आप जैसे बोलते हैं ना होमवर्क करोगे, तो आफ्टर योर होमवर्क व्हाट एवर यू आर टेकिंग as a decision, what you are deciding, what you will experience, so that experience and that decision will be a good decision. And incorporate your event experience cost. Actually बिजनेस में आपने देखा होगा गुडविल की बात करते हैं, है ना? आपने सुन रखा होगा कि एक कंपनी है, इसका गुडविल वैल्यू मनी के हिसाब से मेजर करोगे तो इतना है, वैल्यू का है ऐसा। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे आप बहुत न्यू हो या ये कह लो रफली, इफ यू आर नॉट अवेलेबल इवेंट प्लान, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आप बहुत हाई फाई हो गए हो, बहुत नाम है आपका, एक इमेज है आपका मार्केट में, सो इन दैट सिचुएशन यू शुड चार्ज फॉर दैट नेम। तो आपका उसके एक्सपीरियंस का जो आपका एक्सपीरियंस का आपका जो वैल्यू है या जो गुडविल है आपका, तो कुछ ना कुछ पोर्शन आपको उसके लिए चार्ज करना चाहिए। And then include your event technology cost. टेक्नोलॉजी कॉस्ट में आपने ये देखा होगा कि कई सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे मोबाइल ऐप बहुत सारे हैं, या कुछ टेक्नोलॉजी आप परमानेंटली आपके पास कुछ ऐसा है, या कुछ कॉस्ट वाइज भी हैं, कुछ के लिए पे करना पड़ता, कुछ के लिए पे नहीं करना पड़ता आपको। तो अपन क्या है, फ्लो में भूल जाते हैं, वी नेवर रिमेम्बर दिस कि अपन को ये इसके लिए भी चार्ज करना चाहिए, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ चीटिंग मत बोलिए आप इसको, लेकिन आप ये देखिए सामने वाले को क्या पता, सामने वाले को थोड़ी पता है कि आपने कोई ऑनलाइन चीज क्रिएट करके रखा कि ऑनलाइन इसको ऐसा प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑनलाइन फैसिलिटी दे सकते हैं।
या बुकिंग कर सकते हैं, या किसी ऐप की का आपने हेल्प लिया, उसमें इजी हो गया आपकी फंक्शनिंग या एक्टिविटीज। तो ये जो चीजें हैं, इसके लिए हम चार्ज नहीं करते। तो आपको उसको चार्ज करना है कुछ, जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो उसके लिए, उस टेक्नोलॉजी के लिए आपको कुछ चार्ज करना है। और आपको अब सामने वाला पूछने तो नहीं आएगा कि आपने क्या कॉस्ट ज़्यादा कर दिया, क्या कर दिया, लेकिन आपको उस टेक्नोलॉजी का का बेनिफिट आपको उठाना। देन estimate your event promotion cost. You are aware with this, and consider event ROI, return on investment. इसको आपको कैलकुलेट करते रहना है, मॉनिटर करते रहना, देखते रहना है। आपको पता रहेगा कि क्या आपको एक्चुअली मिल रहा है, और एक्चुअली आपकी पोजीशन का क्या है अभी प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से। So you have to compare or calculate this ROI, return on investment. Leave an emergency fund. So always you should try to leave a portion of your fund in event for your emergency conditions. जैसे अभी ऊपर कहीं हम जब बात कर रहे थे तो ऐसा कोट कर रहे थे कि मान लीजिए पानी गिर जाता है, तो पानी गिर जाने की कंडीशन में मान लीजिए गर्मी का महीना है, समर सीजन है, और अचानक आंधी आ गई, पानी गिर गया। सो अब फिर वो क्या करोगे, आप कहाँ से फंड ले आओगे, क्या करोगे? तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिचुएशन ऑफ सिंगल emergency, and this emergency is not certain, and it is not certain in each and every cases or event, but always you should create or reserve a emergency fund, because of this will be your good step, and this will be your advanced planning. So this will be very good for your image and your smooth functioning of your event. And like that, you can also minimize and prepare a impressive costing of your event. And next is avoid common event budgeting mistakes. So whatever mistakes are generally we see, we face in our accounting budgeting system. So this should be considered continuously in our mind, and we should take as a challenge precautions in our budgeting system, our costing system. And after this, get creative to make your event budget stretch further. Here, you can see the it is written free technology, outsourcing, partners with brands, local business, etc. So if you are a event planner, so here you should you should be smart, and you should be creative, and how you will be, so how you can show to others or society that you are very creative or you are very intelligent. So answer is that you are you should be technology based. If you are going with help and with technology,
So you can enjoy this situation, and you can consider you will be considered as a expert and a creative person or planner. Okay. So dear participants, these are the some basic steps and tracks on which you can run your events, and you can estimate and your cost, and you can prepare your budget. But really, it is a statement of income expenses, and if you are adding here incomes, so this will be a statement of income and expenses. And after this, I would like to show some specimen of event budgets. Okay, so here you can see conference budget report. Okay, so it is first item is venue, in which it is location, rental, event staff, equipment rental, additional tables, chairs, etc. So this is an example of your a conference, and you can see there is a column projected figures and actual figures. So this is written subtotal and total. So actually, you are required to fill these both columns, means projected and actual. Projected will be written in advance. Means you can say it will be pre-activity. प्री-इवेंट एक्टिविटी मीन्स इवेंट स्टार्ट होने के पहले आप एक कॉलम भर लेते हो हैं, और इसमें जब वो पोस्ट एक्टिविटी हो जाता है, आपका एक्टिविटी कंप्लीट हो जाता है, आप पोस्ट एक्टिविटी में आ जाते हो, तब आप एक्चुअल का कॉलम भरते हो. और whenever you will compare these two columns, then you will get a plus or minus amount. So this will be your profit and loss. This show your position of reducing or increasing in your cost. So you can see here. And next is topic is travel and public relations and decor, event programmer. And these are these are headings and subheadings, and you can social media, advertising, refreshment. See here, refreshment में आप ड्रिंक्स, फूड्स, केटरिंग, ये सब चीजें दी हुई है, पर कहीं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी कुछ देर पहले अपन ने बात किया था, तो यहाँ फूड को डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, ले रहे हैं. कोई इसमें ड्रिंक्स में ही खत्म कर सकते थे, कोई ब्रेकफास्ट में ही खत्म कर सकता है, ये ऑप्शन यहाँ रहते हैं. तो ये डिपेंड करता है कि आपके बजट का है. देन तो आपने देखा होगा कि जो ये आपका स्पेसिमेन है कॉन्फ्रेंस का था, और ये एक स्पेसिमेन है आपका पॉलिटिकल कैंपेन का है बजट से. इसमें देखिए, इसमें जो हेड्स देखिए, इसमें है आपका जैसे आपका प्रोजेक्टेड कॉस्ट हो गया, फिर एक्चुअल कॉस्ट. इसमें आप देखिए यू कैन सी द हेड्स ऑपरेशंस जो लिखा हुआ, सैलरीज, वोटर फाइल्स का डेटाबेस, वेबसाइट, गैस, ऑफिस, these are the operations. And next voter contacts, subheadings, direct mail, radio production, digital advertising, live, automated call, and so on. And these are the specimen of political
companion. And then other example is adventure sports budget report. Here you can again see this cost per participant. So here it is not. I think it is not proper because of there is not two columns here. There should be a column of projected or estimated and actual, but it is not here. And this should be here. So, as per my experience and knowledge, this is not proper specimen of event budget. And this is a wedding budget. You can see. So these are the items. Apparel. These are so many items are there, and you can see here estimated and actual. And this is a also given a reception. And these are other items. This is very long. These are very long. Here you can see estimated, actual. This is a blank format of budget. So I think you are able to prepare an event budget in which only you will be required 3 columns. One will be of particulars, and which will be which depends upon the nature of your event, and then other column will be related to your cost, which will be divided in 2 parts, estimated and actual. This is a standard format or a standard sample of event budget. So you can prepare this. और फाइनली ये मैं कहना चाहूंगा आपको कि जो भी इवेंट बजट आप बना रहे हो, तो इवेंट बजट जो है कहीं भी आपको एक ही, यदि वेडिंग इवेंट है और वेडिंग इवेंट ही आप 10 प्लानर से आप प्रिपेयर करवा रहे हैं, तो 10 प्लानर का आप कंपेयर करोगे तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कम आपको 10 आइटम अलग तो हो ही जाएंगे. दिस इज माय एक्सपीरियंस. व्हेन यू विल कंपेयर सेम ए बजट ऑफ सेम इवेंट विथ other planner, so you will get some different activities. So finally you can say that there is a specific format or pro forma of event budget, और ये जो है आप प्लानर के एक्सपीरियंस पर और कस्टमर के नीड पर डिपेंड करता है. चाहे कुछ भी हो, कोई भी इवेंट हो, वेडिंग का ही नहीं लेना, कोई भी इवेंट हो. मान लीजिए कि 50 कस्टमर, कोई टूर वाला इवेंट है और उसमें 50 कस्टमर है, वो 50 ऑप्शन दे सकते हैं. आप कहो कि एक्स कंपनी ने, एक्स प्लानर ने
जो बजट के ड्राफ्ट 50 आइटम है या जो प्लानर से अलग हो रहे हैं, और कोई बी प्लानर है उसने किया, उसके पास आप मान लीजिए कि उसका जो एक्सपीरियंस है कहीं 60 तरीके के आइटम से उसने ऐड कर दिया है, क्योंकि कस्टमाइज यदि आप कर रहे हो, क्योंकि कस्टमाइज यू आर वर्किंग फॉर कस्टमर्स, so always you will try to customize your activities. So whenever you will customize your activities, so that time or in such situation you are adding such items in your budget as a head. तो 50 लोगों को कंसीडर किया तो 50 आइटम हो जाएंगे, 100 लोगों को कंसीडर किया 100 आइटम्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे तो बजट में कस्टमाइज हो जाने के कारण से उसके हेड्स बढ़ सकते हैं या कम हो सकते हैं। अपन को केवल सिंपल सा वो ओपिनियन रखना है, हमको बजट बनाना है तो एडवांस में जो कॉलम भरेंगे वो एस्टिमेटेड का होगा, और पोस्ट इवेंट जो होगा वो एक्चुअल होगा। बस 2 कॉलम्स रहेंगे। और जो कंपेयर करोगे आप, इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर दिस ट्रेडिशनल बजटिंग सिस्टम विथ योर इवेंट बजट, सो यू कैन से द master budget and event budget will be same, because of master budget is a summary of all functional budgets or subsidiary budgets, and event budget is also a summary of your all activities, कि आपके फूड से रिलेटेड क्या एक्टिविटीज हुए हैं या उसका एक समरी आ गया तो फूड एंड बेवरेज में आ गया। लोकेशन से रिलेटेड आपने एक चीज बजट बनाया तो लोकेशन में भी बहुत सारे सब हेड्स हैं और वो उसको आपने ले जा करके इवेंट बजट में लोकेशन के नाम से उसको आपने ऐड कर दिया। डेकोरेशन का हेडिंग में तो डेकोरेशन या जैसे एडवर्टाइजमेंट लिया आपने तो एडवर्टाइजमेंट कई तरीके से हो सकते हैं, डेकोरेशन भी आपका कई तरीके से हो सकता है। एडवर्टाइजमेंट आपके मास्टर बजट का पार्ट है, डेकोरेशन आपका इवेंट बजट का पार्ट है। गिफ्ट की बात करूं, आपने गिफ्ट दिया तो गिफ्ट का एक अलग बजट है, इसको ले जाके अपने इवेंट बजट में आपने वो कर दिया। सो इन सच मैनर यू कैन से the event budget is just like a master budget, and it is a summary of all activities are all इवेंट्स, इवेंट्स के जो छोटे छोटे बजट्स हैं उनकी समरी आप ऐसा कह सकते हैं। तो this is my experience that event budget and master budgets are can be same, and master budget contains summary of functional budgets, and event budgets contains the summary of functional activities are so many departments, अलग अलग जो उनके डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग जो स्टेप्स हैं, एक्टिविटीज हैं, उनकी समरी। और कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं ये भी आपके टैलेंट के ऊपर और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो 3 चीजें आपको इसमें देखनी है कि बजटिंग आप कैसे करोगे, कैसे मिनिमाइज करोगे और कैसे वेरिएशन इसमें होता है, तो उसके साथ में क्या प्लस माइनस आप करो। ओके, थैंक टू ऑल। ओके ओके, yes sir, thank you so much sir. I would request participants, if you have any queries, please feel free to ask. Either you can type in the chat box or you can unmute yourself and ask the question directly to sir. Anybody would like to have a query? I think it was very elaborative and a good
informative session. So I would request Mr. Anshul Jain to please provide us with vote of thanks. Thank you, ma'am. Good afternoon. With your words, your knowledge was very faithful for us, especially the classification of budget and how budget are classified in different categories. Item requires an event, their importance, and budget controlling. The way you explained each and everything in detail was very resourceful. Once again, thank you for sharing your knowledge and giving your precious time. Thank you, sir. Thanks. Thank you. Thank you, sir, for giving your precious time. And it was a very informative and elaborative session with you. We are really privileged to have you as a resource person. Thank you, sir, so much. Most welcome.